Dear students, good morning and welcome back in bio classes by Arpit Shukla. Now today we are discussing about the topic animal kingdom. That is very important for the class 11 and as well as for NEET examination. So now today we are discussing about the topic animal kingdom. So when we are study about the animal kingdom, so first of all we are discussing about that कि what is the important feature of the animals. ठीक है, तो जब भी हम इस बारे में बात करते हैं एनिमल किंगडम की बात करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव डिस्कस अबाउट दैट कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ द एनिमल किंगडम. So if we are talking about the important feature, so the first point is come at this point, या come in this point is that कि मेटाजोन्स. आप सभी को पता है जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ मल्टी सेलुलरिटी कंपोजिशंस. जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो सारे के सारे क्या करते हैं, या एनिमल्स है वो सारे के सारे क्या करते हैं, मल्टी सेलुलरिटी को शो करते हैं. एंड ड्यू टू द शोइंग रीजन ऑफ द multicellularity, these organism is called metazoans. Clear? After that, second point we have discussed about that. Second important feature of the animals is do not have cell wall. बेटा जितने भी important animals हैं या जितने भी animals हैं, importantly सारे ही animals की बात अगर हम करते हैं तो animal do not have a cell wall. At the place of cell wall there is a one more covering is found in the case of animal cell, that is known as cell membrane. So it is the very important characteristic of the animal kingdom is that कि do not have a cell wall. और किसी भी ऑर्गेनिज्म में आपको सेल वॉल्स देखने के लिए नहीं मिलेंगी बिकॉज इट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द प्लांट किंगडम. सेकेंड, नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द नेक्स्ट point is that generally motile except sponge. जितने भी एनिमल्स होते हैं all animals are the motile, मतलब they have a capability for the movement from one place to other place, या हम उसको ये भी बोल सकते हैं कि they are doing the process of locomotion. They all are the motile, मतलब वो एक जगह से दूसरी जगह पर प्रॉपर्ली क्या करते हैं, मूव करते हैं. So they are generally motile except स्पंज. ठीक है, केवल स्पंज को अगर हम लोग छोड़ दें तो इसके अलावा दुनिया में जितने भी एनिमल्स हैं वो सारे के सारे एनिमल्स क्या है बेटा, मोटाइल हैं. वो स्टेशनरी फेज में आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगे. दे ऑल आर द टोटली मोटाइल. दैट मीन्स कि दे आर नॉट अ स्टेबल एट पर्टिकुलर प्लेस एक्सेप्ट स्पंज. प्लीज रिमेंबर दैट पॉइंट, एक्सेप्ट स्पंज. After that, if we are talking about in the case of animals, that is heterotropic mode of nutrition. इनमें क्या होता है बेटा, हेट्रोट्रॉपिक मोड्स होते हैं न्यूट्रिशन में. मतलब all organisms are depend on the other organism for the nutrition, या sometimes they are depend on the producers like a plant. So now the next important characteristic feature is heterotropic mode of nutrition is found in the case of all type of animals. Third one, next one is basically they are consumer. Basically ये क्या होते हैं, कंज्यूमर होते हैं. ये फोटो ऑटोट्रॉपिक की तरह नहीं होते हैं. दे हैव नॉट एबिलिटी टू डेवलपमेंट ऑफ इट्स ओन फूड. तो नाउ वी कैन से दैट दे आर बेसिकली कंज्यूमर. आफ्टर दैट the last very important function is that कि they show the process of sexual reproduction. That means कि they produce the gametes and that gametes are fused with each other and develop a zygote. So now we can say that कि they show the quality of sexual reproduction, and that sexual reproduction is the important feature of animals. ठीक है, तो यहाँ पर हमने एनिमल्स की बात की. नाउ टिल हियर वी कैन डिस्कस अबाउट द इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ द एनिमल किंगडम. आफ्टर दैट वी हैव डिस्कसिंग अबाउट द डाइवर्सिटी ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट. हमें और आपको सभी लोगों को ये पता है कि
डाइवर्सिटी के बिहाफ पर देखें तो हमारे पास पूरे यूनिवर्स में अप्रोक्सीमेटली मिलियन नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। बट इफ वी कैन डिस्कसिंग अबाउट ऑन द बेसिस ऑफ डाइवर्सिटी ऑन द हैबिटेट, हैबिटेट का मतलब क्या होता है? आवास, मतलब जहां पर हम लोग रहते हैं, दैट इज द हैबिटेट। तो इफ वी आर टॉकिंग अबाउट इन द केस ऑफ हैबिटेट, तो सबसे पहले ऑर्गेनिज्म होते हैं एक्वेटिक, क्योंकि लाइफ का ओरिजिनेशन भी कहां से हुआ था? एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म और एक्वेटिक सिस्टम से हुआ था या वाटर में हुआ था, इसलिए हम लोग सबसे पहली बात करते हैं वाटर की। तो एक्वेटिक का मतलब अगर हम बात करें द टाइप ऑफ एनिमल्स विच लिव इन वाटर, सो दीज आर नोन एज एक्वेटिक। अब बेटा एक्वेटिक में भी कई कंडीशंस क्या हैं? क्लासिफाइड है, या हम यूं कह सकते हैं द एक्वेटिक सिस्टम इज आल्सो डिवाइडेड इनटू द वेरियस पार्ट्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव डिस्कस अबाउट द मैराइन। मैराइन ऑर्गेनिजम्स आर द टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म विच आर लिव इन सी, ठीक है, या ओशियन। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि आपके ओशियन में या सी में सरवाइव करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैराइन बोलते हैं। सो द नाउ द टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म विच लिव इनसाइड द ओशियन और विच लिव इनसाइड द सी, सो दैट ऑर्गेनिज्म इज नोन एज मैराइन ऑर्गेनिज्म या मैराइन एनिमल, ठीक है। अब देखिए मैराइन्स में भी बेटा हमने 3 कंडीशंस डिवाइड कर दी, या ये कह सकते हैं कि एक्वेटिक में भी क्या है, हमने अलग अलग तरीके की कंडीशंस डिवाइड कर दी। जो पहला कंडीशन है दैट इज नोन एज प्लैंक्टोनिक। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लैंक्टोनिक? मतलब द टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म विच लिव एट द अपर सरफेस ऑफ वाटर। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो वाटर के अपर सरफेस पर सरवाइव करते हैं, उनको हम लोग प्लैंक्टोनिक बोलते हैं। After that we have discussed about the pelagic. Now the type of organism which live in the middle layer of the water is known as pelagic. मतलब ऐसे organism जो वाटर के मिडिल लेयर पर या मिडिल पार्ट्स पर सरवाइव करते हैं, उनको हम पेलाजिक बोलते हैं। नाउ आफ्टर दैट वी हैव डिस्कसिंग अबाउट द बेंथिक, मतलब द टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म विच लिव ऑन द रूफ ऑफ द वाटर, ठीक है। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो वाटर की सरफेस पर, एकदम लोअर वाली सरफेस पर सरवाइव करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? बेंथिक बोलते हैं। नाउ द एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म इज अगेन डिवाइडेड इनटू दैट पार्ट। द फर्स्ट वन इज प्लैंक्टोनिक, सेकेंड इज पेलाजिक एंड थर्ड इज बेंथिक। After that we have discussing about the terrestrial. Terrestrial का मतलब the type of organism which are live on the land. ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सर्वाइवल के लिए लैंड पर रहते हैं, उनको हम टेरेस्ट्रियल बोलते हैं। द टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म विच लिव ऑन द लैंड इज नोन एज टेरेस्ट्रियल एनिमल। आफ्टर दैट वी हैव डिफाइंड द एम्फीबियंस। सबसे पहली बात यहाँ पर ये आती है कि वाई दे आर कॉल्ड एम्फीबियंस, इनको हम एम्फीबियंस ही क्यों कहते हैं? बेटा द वर्ड एम्फीबियन इज मेड अप ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड्स, एम्फी एंड बायोन्स। एम्फी का मतलब होता है बोथ एंड बायोन्स का मतलब होता है लाइफ। सो नाउ वी कैन से दैट द लाइफ इज फाउंड ऑन land as well as water, so that type of organisms are known as amphibians. ऐसे organism जो water और land दोनों पर survive करते हैं, उनको हम amphibians बोलते हैं। For example frog, ठीक है। frog आप देखिए, they show the condition of hibernation and estivation and they are easily survive on the land as well as in water, so that's the reason they are comes under the amphibians. आफ्टर दैट वी आर डिस्कसिंग अबाउट द एरियल्स। जैसे बर्ड की बात करते हैं तो द टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म विच लिव इन एयर, ठीक है, एंड आफ्टर सम टाइम दे मूव ऑन द लैंड और दे लिव ऑन द लैंड, सो दैट इज नोन एज एरियल। आफ्टर दैट वी हैव डिस्कसिंग अबाउट द पैरासाइट्स या पैरासिटिक कंडीशन। The parasitic condition is the type of condition in which the organism depend on the host body
and create the effect the harmful effect on that particular organism, that is known as parasite. Now we can say that the type of organism which is depend on the host body for the nutrition is known as parasites. बेटा यहाँ पर हमें एक चीज और डिस्कस करनी होगी. हमारे पास बेटा दो तरीके के पैरासाइट्स होते हैं. देयर आर टू टाइप्स ऑफ पैरासाइट्स आर फाउंड. द फर्स्ट इज नोन एज एंडोपैरासाइट्स एंड सेकंड इज नोन एज एक्सोपैरासाइट्स. एंडोपैरासाइट्स की बात करें so the type of organism which survive inside the body of a host body. ठीक है, the type of organism which survive inside the host body is known as endoparasites. And now the type of organism which survive external part of the body is known as exoparasite. मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो हमारी बॉडी के इंटरनल पार्ट पर सरवाइव करते हैं उनको हम एंडोपैरासाइट्स कहते हैं, और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो हमारी बॉडी के आउटर पार्ट पर सरवाइव करते हैं उनको हम एक्सोपैरासाइट्स कहते हैं. बेटा एंडोपैरासाइट्स का अगर एग्जांपल देखें तो आपने नाम सुना है, दैट इज Ascaris, tapeworm. ठीक है, they are the various type of organism which survive in the inside the body. ठीक है, and exoparasites का बहुत common example है leech, and one more example is mosquito. It is very common example which is seen everywhere. So there are two types of parasite we have discussed here. After that we are discussing about the subterranean, that is the type of organism which survive inside the soil. मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो inside the soil या inside the earth survive करते हैं, बेटा उनको हम लोग क्या बोलते हैं? सबटेरेनियन बोलते हैं. ठीक है, तो these are the classification of the organism on the basis of diversity, and these are the important feature of the animals. ठीक है, after that in next video we are discussing about the basis of classification. मतलब किस बेस पर एनिमल किंगडम को क्लासिफाई किया गया है. आफ्टर दैट इन नेक्स्ट वीडियो वी हैव डिस्कसिंग अबाउट दैट कि हाउ वी कैन क्लासिफाई द ऑर्गेनिज्म, व्हाट इज द बेसिस ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म. नाउ गुड बाय, सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो. हैव अ नाइस डे.